آپ سبھی کا خیر مقدم ہے آپ کے اپنے آفیشیل یوٹیوب چینل چوک اینڈ ڈسٹر اکیڈمی میں ایک بار پھر سے۔ اور آج ہم لوگ آپ کے لیے ایک نیا پیپر لے کر آئے ہیں جو پارٹ 2 کے حوالے سے ہم لوگ آج بات کریں گے۔ اس کا جو پارٹ 1 ہے ہم لوگ پہلے جو ہے سولو کر چکے ہیں، اور یہ ہے ہمارا JNU MA اردو کا پیپر 2019 کا۔ اور پچھلے ویڈیو میں نے آپ سے ایک سوال پوچھا تھا اور اس کا جو آنسر تھا وہ تھا بنت لمحات کس کا شعری مجموعہ ہے، تو آنسر ہو جائے گا اختر الایمان، جس کا جو ہے وہ کافی سارے بچوں نے کیا دیا ہے، جواب دیا ہے۔ تو چلیے پھر بنا کسی دیری کے آج کا جو ہمارا سیشن ہے وہ ہم لوگ شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے اصلاحی زبان تحریک سے کس کا تعلق نہیں ہے؟ تو 4 آپشن ہے اس میں، جو صحیح آنسر ہوگا اس پہ ہم لوگ ٹک کریں گے۔ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 4، یعنی کہ انیس کا تعلق جو ہے وہ اصلاحی تحریک سے نہیں ہے۔ اور اصلاحی تحریک کے جو بانی ہیں وہ ہیں امام بخش ناسخ، جن کو ادبی ڈکٹیٹر بھی جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں کوشچن نمبر نیکسٹ کے پاس۔ سر سید کی وفات پر لکھی گئی سید کی لوح تربت کس کی تخلیق ہے؟ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 4، یعنی کہ یہ علامہ اقبال کی تصنیف ہے۔ کوشچن نمبر 54 کا آپشن 2۔ آگے بڑھتے ہیں، ترقی پسند تحریک کی پہلی کانفرنس کب اور کہاں پر ہوئی؟ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 1 1936 لکھنؤ میں۔ اور کل جو ہے وہ ابھی تک کتنی ہوئی ہیں؟ 8 جو ہے وہ کانفرنس ہوئی تھی ترقی پسند تحریک کی، جس میں پہلی ہوئی 1936 میں، دوسری ہوئی 1938 یعنی کہ 1938 میں، اس کے بعد تیسری ہوتی ہے 1942 میں، اس کے بعد نیکسٹ ہوتی ہے 1945 یعنی کہ 1945 میں، اس کے بعد 1949 میں، اس کے بعد 1952 میں، اور جو آخری ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 1956 میں۔ تو یہ کل ملا کے 8 ہوتی ہے، 1 2 3 4 5 6 7۔ اچھا ایک رہ گئی 1947 میں 1947 میں۔ تو پہلی 1936، دوسری 38، 42، 45، 47، 49، 52 اور 56، یہ جو ہے وہ کل 8 کانفرنس ہوئی تھی ترقی پسند تحریک کی۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں، جو ترقی پسند تحریک کی پہلی کانفرنس ہوئی 1936 میں، اس کی جو صدارت کی تھی وہ منشی پریم چند نے کہی تھی، اور جس میں انہوں نے اپنا خطبہ پڑھا تھا، اور خطبے کے ساتھ انہوں نے کہا تھا اب ہمیں حسن کا معیار بدلنا ہوگا۔ بڑا مشہور ایگزام میں جو ہے وہ آنے کے چانسز اس کے ہمیشہ رہتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، ترقی پسند تحریک سے کون شاعر منسلک نہیں تھا؟ تو یہاں پر آپ لوگوں کو بتانا ہے کون نہیں تھا۔ تو سردار جعفری، کیفی اعظمی، مدعو سلطان پوری اور اختر الایمان۔ تو کوشچن نمبر 55 کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 4 اختر الایمان۔ باقی یہ جو ہے سارے کس سے تھے؟ ترقی پسند تحریک سے وابستہ تھے۔ یہیں پر علی سردار جعفری نے جو ہے وہ ترقی پسند تحریک کا اپنا ایک رسالہ نکالا تھا 1939 میں، جس کا نام رکھا گیا تھا نیا ادب۔ کبھی کبھی ایگزام میں پوچھ لیا جاتا ہے کہ ترقی پسند تحریک کا کون سا رسالہ ہے، تو آنسر ہو جائے گا نیا ادب، جو 1939 میں علی سردار جعفری نے نکالا تھا۔ اگلا سوال ہے، خدائی فوجدار کس کا ناول ہے؟ کوشچن نمبر 56 ہے، تو اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 2 رتن ناتھ سرشار کا۔ اگلا سوال، لسان الغیب کا لقب کس شاعر کو حاصل تھا؟ کوشچن نمبر 57 ہے، تو آنسر ہو جائے گا آپشن 2 یعنی کہ حافظ کو۔ اگلا سوال، وہ کون سا فارسی شاعر اپنی رباعیوں کی وجہ سے مقبول ہوا؟ کوشچن نمبر 58 ہے، اور اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن اے یعنی کہ عمر خیام۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال، سنسکرت کی کس کتاب میں رس کا نظریہ پیش کیا گیا ہے؟ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا کوشچن نمبر 59 کا آپشن 4، یہ ہو جائے گا ناٹیہ شاستر کا۔ اور اس کے جو مصنف ہیں وہ ہیں بھرت منی۔ ایگزام میں کئی بار پوچھا گیا ہے، تو اس لیے آپ لوگ جو ہے وہ یاد رکھ سکتے ہیں، اور اسی میں انہوں نے 8 رس کی جو ہے وہ کیا کی ہے، نظریہ پیش کیا ہے بھرت منی نے۔ اگلا سوال، خسرو کے کلام میں کس زبان کے اثرات نہیں ہیں؟ کوشچن نمبر 60 ہے، اور اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 4 کے یعنی کہ پالی کے۔ اگلا سوال، شاہ نامہ کس کی شاہکار تخلیق ہے؟ کوشچن نمبر 61 ہے، اور اس کا جو صحیح آنسر ہو جائے گا وہ ہو جائے گا آپشن اے یعنی کہ فردوسی کی۔ اگلا سوال، ہندوستان کا شیکسپیئر کس کو کہا جاتا ہے؟ دیکھیے یہ سوال تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے۔ آپشن میں اگر یہاں پہ دیکھا جائے تو کوئی بھی اردو کا نہیں ہے، حالانکہ اردو کے ادب سے دیکھا جائے تو ہندوستان کا شیکسپیئر ہم لوگ جو ہیں وہ آغا سر کاشمیر کو مانتے ہیں، لیکن یہاں پہ جو صحیح آنسر ہو جائے گا وہ ہو جائے گا آپشن 1 یعنی کہ
कालिदास को जो है वो हिंदुस्तान का शेक्सपियर माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ। उदीसा ज़ैदी ने अभिज्ञान शकुंतलम का तर्जुमा किस नाम से किया था? क्वेश्चन नंबर 63 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि अभिज्ञान शकुंतलम। अगला सवाल, करबल कथा के मुसन्निफ का नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 64 है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 64 का ऑप्शन 3 यानी कि फ़ज़ल अली खां फ़ज़ली। और करबल कथा में आपको पता है ये वाक़या करबला से ताल्लुक़ रखती है, जिसमें 12 मजलिसों का है ज़िक्र किया गया है, जिसमें 7वीं मजलिस जो है वो बहुत अहम होती है, जिसमें हज़रत हुर और इमाम हुसैन का जो है वो ज़िक्र किया गया है। ये अक्सर जो है वो आप लोग याद रख सकते हैं, एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा गया है। अगला सवाल, बद्र मुनीर किस मसनवी का किरदार है? बड़ा ही ईजी सवाल है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि सहरुल बयान का, जो कब लिखी गई? 1784 में या 85 में लिखी गई, जिसके मुसन्निफ़ का नाम है मीर हसन। अगला सवाल, मसनबी ख्वाब व ख़याल के मुसन्निफ़ का नाम क्या है? तो यहाँ पर जो है वो 2 चीज़ें आती हैं मसनबी ख्वाब व ख़याल के हवाले से। एक जो है वो ख्वाब व ख़याल मसनवी है मीर तकी मीर की, और दूसरी है आपकी मीर असर की। तो मीर तकी मीर ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर हो जाएगा मीर असर। तो इस तरीके से आप लोग जो है वो इसमें ध्यान से कीजिएगा एग्ज़ाम में। अगला सवाल, मसनवी इसरार इश्क के मुसन्निफ़ का नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 67 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि मोमिन खा मोमिन की मसनवी है इसरार इश्क। इसके अलावा इनकी एक और मसनवी है कौल गमे, ये भी जो है वो अक्सर एग्ज़ाम में जो है वो पूछी जाती है। अगला सवाल, मुसद्दस मद्दुज इस्लाम के खालिक कौन है? क्वेश्चन नंबर 68 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि अल्ताफ़ हुसैन हाली ने तसनीफ़ लिखी है। और ये कब लिखी गई है? तो आप लोग याद रख लीजिएगा 1879 में जो है ये मसनवी वो नज़म लिखी गई है, जो सर सैयद की फरमाइश पर लिखी गई है। अगला सवाल, मीर हसन की मसनवी सहरुल बयान किस में लिखी गई थी? मैंने आपको अभी बताया था, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि 1784 में। अगला सवाल, कांच का बाजीगर के मुसन्निफ़ कौन है? क्वेश्चन नंबर 70 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि शफ़क़। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 71, मुसद्दस हाली को किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है? तो अभी हमने जो नज़म पढ़ी है अल्ताफ़ हुसैन हाली की मद्दुज इस्लाम, जो लिखी गई है 1879 में, उसी का दूसरा नाम है मुसद्दस हाली। आगे बढ़ते हैं, रसीदी टिकट किसके खुद नविश्त हैं? तो बड़ा ही मशहूर सवाल है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि अमृता प्रीतम की ये खुद नविश्त है। अगला सवाल, मीर की शेरी लिसानियात किसकी तनकीदी तसनीफ़ है? ये एक तसनीफ़ है। क्वेश्चन नंबर 73 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। आगे बढ़ते हैं, सुखनदान फ़ारस किसकी तसनीफ़ है? बड़ी मशहूर तसनीफ़ है और अक्सर एग्ज़ाम में पूछी जाती है, आंसर हो जाएगा 2 यानी कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद की। अगला सवाल, नजमुद्दौला दबीरुल मलिक किस शायर का खिताब है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 75 का ऑप्शन 4 यानी कि ये खिताब है क्वेश्चन नंबर 75 का असदुल्ला खां गालिब का। यहीं पर आप लोगों को बताना है गालिब कहाँ पैदा हुए? तो गालिब कहाँ पैदा हुए? गालिब आगरा में पैदा हुए। कब पैदा हुए? 1797 में जो है वो पैदा हुए, और इनको जो है वो 18वीं सदी का जो है वो शायर शुमार किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, मोमिन का ख़ानदानी पेशा क्या था? तो आंसर हो जाएगा तबाबत यानी कि उनका हकीम या डॉक्टरी था। आगे बढ़ते हैं, किस शायर को बहादुर शाह ज़फ़र के उस्ताद होने का शर्फ हासिल है? क्वेश्चन नंबर 78 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि ज़ौक़। कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ ले जाता है कि ज़ौक़ से पहले कौन थे? तो ज़ौक़ से पहले बहादुर शाह ज़फ़र के उस्ताद हुए शाह नशीर। और अगर पूछा जाए ज़ौक़ के बाद कौन हुए, तो याद रख लीजिएगा असदुल्ला खां गालिब। आगे बढ़ते हैं, मुल्क राज आनंद किस अदबी तहरीक के बानियों में से थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 79 का ऑप्शन 2 यानी कि तरक्की पसंद तहरीक के। और ये किस अदब से थे? तो याद रख लीजिएगा ये इंग्लिश लिटरेचर से थे, और इन्होंने ही 1938 में जो कलकत्ता में हुई थी कॉन्फ्रेंस, उसकी क्या की थी? सदारत की थी।
पहली मुंशी प्रेमचंद का नाम आता है और दूसरा मुल्क राज आनंद का। अगला सवाल, श्री राम और महात्मा बुद्ध पर किस शायर ने नज़में लिखी? क्वेश्चन नंबर 80 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि नज़ीर अकबर आबादी ने। अगला सवाल, मरसिया गोरे गरीबा किस शायर की तख्लीक है? बड़ा ही मशहूर सवाल है, आंसर हो जाएगा 4 ऑप्शन नज़म तबातबाई। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ। हयातुल्लाह अंसारी के नावल लहू के फूल का मरकज़ी मौजू क्या है? क्वेश्चन नंबर 82 है और इसका सही आंसर हो जाएगा तहरीक आज़ादी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 83। फैज़ की शायरी की बुनियादी सिफत क्या है? क्वेश्चन नंबर 83 है और इसका सही आंसर हो जाएगा रूमानो इंकलाब का इम्तिज़ाज़ ऑप्शन 4। अगला सवाल, मीर अमन ने बाग़ो बहार का तर्जुमा करते वक्त किस किताब को पेश नज़र रखा? तो वैसे तो आंसर इसका किस्सा चाह दरवेश होता है, लेकिन ऑप्शन में है नौ तर्ज मुरस्सा। तो क्वेश्चन नंबर 84 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कब लिखी गई? 1775 में लिखी गई। अगला सवाल, आखिरी सवारियाँ किसका नॉवेल है? क्वेश्चन नंबर 85 है और इसका सही आंसर हो जाएगा 3 यानी कि सैयद मोहम्मद अशरफ का। आगे बढ़ते हैं, नॉवेल कई चांद थे सरे आसमां का मुसन्निफ़ कौन है? ये नॉवेल है तो सबको पता होगा, आंसर हो जाएगा शमशुर रहमान फ़ारूकी। अगला सवाल, चंद हम असर किसकी तसनीफ़ है? तो यह खाकों का मजमुआ है और इसके मुसन्निफ़ है मौलवी अब्दुल हक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ। मना जाते बेवा किसकी नज़्म है? क्वेश्चन नंबर 88 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि अल्ताफ़ हुसैन हाली। अगला सवाल, इंद्र सभा के मुसन्निफ़ का नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 89 है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 89 का ऑप्शन ए यानी कि आगा हसन अमानत लखनवी का। अगला सवाल, शिबली नुमानी की तसनीफ़ अल फ़ारूक का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है? क्वेश्चन नंबर 90 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि ये सवाने हैं। अगला सवाल, सी पाराए दिल का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है? तो यह ख्वाजा हसन निज़ामी के इंशाइयों का मजमूआ है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि इंशाइया, जिसमें तकरीबन 134 क्या है इंशाइया जो है वो शामिल है। आगे बढ़ते हैं, इस आबाद खराबे में किसकी खुद नवीस्त है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इस आबाद खराबे में ऑप्शन फर्स्ट, ये अख्तर उल ईमान की है जो 1996 में लिखी गई। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, नज़्म ज़ौक़ व शौक़ इकबाल के किस शेरी मजमूए कलाम में शामिल हैं? तो उनके 4 शेरी मजमूए हैं और जैसा कि आप लोगों को मालूम होता है कि एक सवाल आप लोगों के लिए घर के लिए दिया जाता है, तो ये क्वेश्चन नंबर 93 है। आप मुझे बताइए कि नज़्म ज़ौक़ व शौक़ इकबाल के किस मजमूए कलाम में शामिल है? बांगे दरा, अरमग़ान हिजाज, ज़रब कलीम या बाल जिब्रील। आगे बढ़ते हैं, आब हयात का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये तज़किरा है जो 1880 में जो है वो लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं, आब हयात में उर्दू शायरी की तारीख़ को कितने इदवार में तकसीम किया गया है? तो आंसर हो जाएगा 5 और इन 5 इदवार में जो है वो 29 शोरा का जो है वो ज़िक्र है। आगे बढ़ते हैं, जिस नज़्म में रदीफ़ और काफ़े की पाबंदी नहीं की जाती उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग आज़ाद नज़्म कहते हैं। अगला सवाल, उर्दू में सवाने निगारी की रिवायत किसने शुरू की? तो आंसर हो जाएगा अल्ताफ़ हुसैन हाली ने। सबसे पहले सवाने लिखी 1886 में, इसके बाद दूसरी लिखी 1897 में और इसके बाद तीसरी लिखी 1901 में। पहले शेख शादी की, दूसरा हाली की और तीसरी सर सैयद अहमद ख़ां की। आगे बढ़ते हैं, दर्ज झेल में से कौन सा नावल तारीख़ी नावल है? यानी कि इसमें आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 98 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि सलाहुद्दीन अय्यूबी ज़वाल बगदाद। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 99 है, जिंदा नामा किस सिन्फ से है और उसका ताल्लुक़ किस सिन्फ से है? क्वेश्चन नंबर 99 है तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि शायरी, और ये जो है वो किस शायर की तसनीफ़ है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये फैज़ अहमद फैज़ के क्या है तसनीफ़ है। अगला सवाल और हमारा आज के टेस्ट का आखिरी सवाल है, क्वेश्चन नंबर 100, इनमें से किस ज़ुमरे का ताल्लुक़ अफसाने से है? तो यहाँ पे जो है वो ज़ुमरे का ताल्लुक़ बताना है
कौन से जो हैं वो अफसाने हैं सारे। नमक का दरोगा, सनोवर के साए, दाना बादाम। गोदान तो नॉवेल है तो पहले ही गलत हो गया है। मजनू की डायरी, लैला के खतूत और दारा शिको। तो मजनू की डायरी और लैला के खतूत दोनों नॉवेल हैं तो इस हिसाब से ये भी गलत हो गया। ऑप्शन 4 है बर्फ़ आशना बईद, आगे समंदर है और आखिरी सवारियाँ। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा अफसाना है। तो ऑप्शन 4 भी गलत है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि नमक का दरोगा, सनम्बुर के साए और दाना बादाम क्या हैं, अफसाने हैं। बाकी का ताल्लुक ज़्यादातर जो है वो ज़ुमरे गलत हैं। तो इस हिसाब से आज का ये हमारा जो पेपर है वो ख़त्म हुआ। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना जो है वो स्कोर बन रहा है, और आप लोग इसी तरीके से जुड़े रहिए और फीडबैक ज़रूर दीजिए कि आपको जो है वो हमारा मॉक टेस्ट जो है वो कैसा लगता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।